Okay. So this was the question given in morning. Can we predict the answer without solving it? Yes, we can do it without further solving. How can we do? देखो, this T2 is greater है ना? नहीं, ये denominator quantity is greater in fact. So T2 will be smaller than T1. T1 में all the terms are there this much, and यहाँ पर T2 में plus A is more. So this quantity is more denominator. So this is less. तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर इज स्मॉलर? दिस वन ओनली. दिस इज रूल्ड आउट, दिस इज रूल्ड आउट, दिस इज रूल्ड आउट. न्यूमरेटर हैज टू बी बिगर. बट इफ यू कैन सॉल्व इट आल्सो, जस्ट स्क्वायर कर दो. तो दिस इज ओनली थिंग व्हाट न्यू वाज देयर इन दिस, इन डिफरेंशिएशन करके हमें एक्सेलरेशन निकालना था ना. तो टर्म्स विल गेट कैंसल्ड. यहाँ पर g आएगा. दिस विल बी g प्लस a 10 plus 2 by 10, 12 by 10, that's 6 by 5. Got it? So this was, further it was easy question, but only thing, differentiate and get the acceleration. Then since lift is going up, you have to do the plus है ना. Plus करना पड़ेगा यहाँ पे. Lift goes down, minus करना पड़ता है. All right. So this is okay. I think other questions are done. Now we'll continue with the after damped oscillation, in which amplitude decreases continuously, we if we have to maintain the constant amplitude, then we have to apply the periodic force. It is called forced oscillation. Sometimes we need it, sometimes we don't want that amplitude of oscillation should decrease, or it should lose the oscillation. So we have to apply the periodic force. All right. So, and most familiar example of forced oscillation is when child in the garden swings periodically presses his feet against the ground, or someone else periodically gives the child a push to maintain the oscillation. You must have also done. Swing में हम क्या करते? Ground को push करते. Amplitude we can increase it. Amplitude of oscillation. All right. So such a force is given by this formula. Time dependent force is F naught, which is the peak value cos omega d t. Omega d is the driving frequency or frequency of the applied force. F naught is the amplitude of applied force. Then equation will be what? This equation we have seen morning. This was the equation for damped oscillation. Now we are applying the force and maintaining the oscillation. So the applied force will be in the direction of acceleration only. These are in opposite direction, है ना? Therefore, minus है, ये plus है, ठीक है? So now we have the three terms here. ये दोनों इधर भेज देंगे, and एक को क्या लिखते हैं? Second derivative of x. It is a second derivative of x, है ना? ये इधर आ गया, ये वाला term, ये plus हो गया, ये भी इधर आ गया, और right side में this is remaining only. Now again, this is very complicated differential equation we call it. So iska solution again beyond our course. Oscillator initially oscillate with the oscillator initially oscillate with the natural frequency omega. क्या होगी pendulum की natural frequency omega will be root of, ये इधर से निकाल सकते हो, देखो, what will be omega of pendulum? See here. Where it is. Morning we did the derivation here.
ओमेगा जो है इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से देखो we can find out omega is 2 pi by t, put the value of t, that is 2 pi L by G, 2 pi get cancel, यहाँ से omega for the pendulum is G by L. This is its natural angular frequency. There is a natural angular frequency for pendulum. Mass and spring system में क्या था? Do you remember that? Omega was under root of K by M. Here it is root G by L. I will tell you one more interesting point here. One more interesting point is this, कि ये constant है, देखो constant है कि नहीं? G भी constant, L भी constant. Whereas angular speed, which is also denoted by omega, angular speed is not constant. Both are denoted by omega. देखो ये कौन सा है? Angular frequency है ना? Whereas angular speed of pendulum at the extreme point will be 0. यहाँ पर angular speed omega will be 0, क्योंकि रुक जाता है वो. V is equal to omega r है. Velocity is 0, omega is 0, and here omega is maximum. V is maximum, V max होता है. Omega will also be maximum. R will be the length of the string. So angular speed जो कि ओमेगा से ही डिनोट होती है, at extreme point is 0. ठीक है. Whereas angular frequency is constant, and angular frequency constant है, वो भी denote, that is also denoted by omega only. Whereas angular frequency वो भी ओमेगा ही होती, is constant throughout, constant, that is root G by L. ठीक है. So this difference generally is overlooked. We never come to know that these two omega is different here. एक ओमेगा एंगुलर स्पीड का होता है, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट पे 0 हो जाती है. दूसरा ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, which is different. Both are denoted by omega only, but both carry the different meaning. One is 0, other is constant throughout, root G by L. Clear? Could you get the difference? Both this. Circle motion पढ़ा था एंगुलर स्पीड, rate of change of angular displacement d theta by dt. So both are different quantity here. Now going back to natural frequency will depend upon the length of the pendulum, and in case of mass and spring system it will depend upon, यहाँ पर natural angular frequency क्या होगी? In this case mass and spring system है, omega will be root of K by M. In this case pendulum में अभी हमने डिस्कस की, तो यहाँ पर mass and spring system की बात हो रही. This is the angular frequency, natural frequency है ना, जिससे वो oscillate कर रहा है. But then it dies out. थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाती है. It oscillates with the frequency of applied force. It will start oscillating with the applied force की frequency, जिसको we call it driving frequency also, or simply frequency of applied force, है ना. तो ये हो गई, इससे अभी oscillate करेगा. तो final displacement will be decided by driving frequency, not by its own frequency. But it will oscillate like this. This is again, it is the end result of this solving. A is what here? A जो है, it will be amplitude of forced oscillation. Amplitude of forced oscillation, which is depending upon these many parameters. Where T is the time of force measured from the moment when applied, when periodic force is applied, when we apply the periodic force. All right. Amplitude is function of force frequency omega d and natural frequency. Amplitude में दोनों आ रहे हैं देखो, और F naught भी आ रहा है, जो maximum force apply किया period, that is the oscillating force, मतलब
दैट इज जैसे हम ग्राउंड को पुश करते तो कहीं ना कहीं पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी फोर्स की, फिर धीरे धीरे कांटेक्ट ब्रेक होगा तो फोर्स विल डिक्रीज, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स एंड ये टर्म्स आते हैं। दिस इज द सॉल्व रिजल्ट ऑफ दिस सॉल्विंग। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, ए की वैल्यू ये आती है इतनी। डिपेंड्स अपॉन द मेनी फैक्टर, पी मैक्सिमम फोर्स, मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, डैम्पिंग फैक्टर एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड decided by many factors of the forced oscillation. ठीक है, तो forced oscillation is over here. This is the forced oscillation. Let me show you in this here. ठीक है, ये forced oscillation हो गया. Now we'll discuss the resonance. What is the resonance? It is the most familiar word to you. What is this? We'll discuss now. ठीक है, तो resonance क्या है? Just we'll see. Resonance is the phenomena. Okay, let us move on to the resonance. देखो, ये फार्मूला भी नीडेड हियर. Okay, देखो, when the frequency of applied force, which is omega d, matches with the frequency of natural frequency, हम उतनी ही frequency का force लगाएं जो natural frequency है. This term will be zero. Amplitude of oscillation will be maximum. ये term बचेगा ना. So when omega is equal to omega d, natural frequency is equal to driving frequency of the applied force, then A is maximum. And if B is very small, ये भी बहुत छोटा है, amplitude will be further maximum. Very high amplitude will be there. If damping factor नहीं है, amplitude becomes infinite. It has tendency to become infinite. So resonance is the phenomena in which amplitude will be very abnormally high if we are periodic force frequency of periodic force is equal to natural frequency. तो very high amplitude से oscillate करेगा, है ना. So we see how much amplitude is going up in this case. The phenomena of increase of amplitude when omega d is equal to omega is called resonance. ठीक है, जब frequency equal हो जाती है. Let us see amplitude. जब दोनों का ratio 1 है, देखो. Can you see here? Let me write some slightly bigger one. यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ. ओमेगा डी अपॉन ओमेगा, ये रेशियो है, मतलब 1 है, बोथ आर इक्वल. एम्पलीट्यूड बिकम्स हायर एंड हायर एंड हायर व्हेन डैम्पिंग फैक्टर स्लोज डाउन. लो डैम्पिंग फैक्टर डिक्रीजेस. ये यहाँ पे कितना है? 150 ग्राम पर सेकेंड है, एंड दिस इज 70. इनफैक्ट डैम्पिंग फैक्टर का यूनिट क्या होगा? लेट अस सी द यूनिट. Damping force is minus B into V. B is F upon V. न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड नीचे बचेगा mm. इट विल बी केजी पर सेकेंड. तो यहाँ पर केजी है, तो यहाँ पर मास ही बचा हुआ है ना. मास का यूनिट ग्राम में लिखो या किलोग्राम में लिखो. एनीवे इट इज डिक्रीजिंग. 140 से 70 हो गया, फिर 50 हो गया. एम्पलीट्यूड इज फर्दर गोइंग अप एंड अप. दैट्स हाउ एम्पलीट्यूड abnormally increases when frequency matches. तो दिस इज द ग्राफ. फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, देन एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. देखो यहाँ पे इतना है, इसका ये है, इसमें भी कम है, एम्पलीट्यूड इतना ही है. But if it is perfect matching is there or damping factor is less,
we get the high amplitude of oscillation. That is what is the phenomena of resonance. In electronic circuit also it happens. There we use it in tuning the radio and TV sets. We learn it in the 12th standard. Okay. So what you have to remember here only that matching of that frequencies. All right. तो इसके एग्जांपल लेते हैं. यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट. एक तो मैंने बताया स्विंग का, एंड अदर एक्सपेरिमेंट आई विल एक्सप्लेन यू. जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट. Sir, Yes, can you scroll up? this one. Yes, sir. Just a minute, I'll show you in full. रेजोनेंस वाला part नहीं. ओके, रेजोनेंस में दिस फार्मूला भी नीड इट है ना, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं. Thank you, sir. ओके, तो इसमें हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. ये अबव इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली है ना, फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 दे दो नंबर. ठीक है. ऑलराइट, नाउ इसके एग्जांपल देखते हैं. एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं रेजोनेंस का, एंड एग्जांपल भी. लेट अस टेक द एग्जांपल फर्स्ट. जैसे सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक द, soldiers are asked to break the marching. They are asked to go out of step while crossing a bridge. जब ब्रिज पर पहुंचते हैं वो लोग, उनको बोलते हैं मार्चिंग बंद कर दो. मार्चिंग बंद करने से क्या है कि वो लेफ्ट राइट करते हैं, तो दैट इज द पीरियोडिक फोर्स ओवर द ब्रिज. एंड इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो सेम, every structure has got its own natural frequency. तो अगर वो मैच हो गई तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग विद द वेरी हाई एम्पलीट्यूड एंड इट मे कोलैप्स आल्सो. उनको बोलते हैं मार्चिंग बंद कर दो. एंड नेचुरल फिनोमेना, आई मीन earthquake, in case of earthquake, what I was telling you in morning, every building has got its natural frequency. Depending upon its height and its shape, it has got natural frequency. Now, when earthquakes are happening, in that case, the frequency of that earthquake, if it matches with the frequency of building, then it may collapse. It will start oscillating with the high amplitude. It may collapse also, even if it is made by the same strength as its nearby building. So one collapses, other doesn't collapses. And we always blame that what is called builders की उनका faulty material है, but it may not be true always. Even if same strength is there, one may collapse depending upon its height because it will have its own natural frequency. Let me read this point. For same reason, an earthquake will not cause uniform damage to all buildings in an affected area, even if they are built with the same strength and material. The natural frequencies of building depends upon its height and other size parameters and the nature of the building material. The one with its natural frequency close to the frequency of seismic waves is likely to get damaged more. Even aeroplane का भी मैंने example दिया था that उनके wings and frequency of rotation of the engines वो match नहीं होना चाहिए. ठीक है. Other experiment you can do it of the resonance is like this. So take the common rope here. उसमें क्या करना है, उसको common rope ले लो, उसमें pendulum hang कर लो. This is the first pendulum. Second pendulum of slightly shorter length. Third is further slightly shorter. Fourth is of equal length. इसकी equal length है. Fifth is of higher length. तो इसको ऑसिलेट कर दो. जस्ट ऑसिलेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड. इसको ऑसिलेट कर दो अंदर बाहर. ठीक है. तो एनर्जी विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द कॉमन रोप टू ऑल. तो ये इनमें भी ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं. बट व्हाट यू फाइंड कि ultimately later on you see the fourth pendulum will oscillate with the larger amplitude. इसका amplitude maximum होगा, and they will be oscillating with the smaller oscillations, smaller amplitude, है ना? Because why fourth will oscillate with the very large amplitude? Because ये जो इसकी जो driving frequency होगी ओमेगा डी, इसकी natural frequency दोनों की length same है, both will be equal.
लेंथ इस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? अभी हमने ओमेगा देखा G/L, इसकी लेंथ भी सेम है, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी सेम है. Driving frequency and natural frequency for 1 and 4 is equal. It will oscillate. 4 will 4 will oscillate. 4 will oscillate with largest amplitude. एम्पलीट्यूड उसका सबसे ज्यादा होगा. ऑलराइट. और एनर्जी कंजर्वेशन विल बी देयर. व्हाटएवर एनर्जी वी गिव टू इट, सेम the energy will be distributed in this only, है ना? But they will carry small energy, है ना? Amplitude कम है तो एनर्जी कम रहेगी, but it will carry maximum energy. Maximum energy transfer will be there in the fourth one, है ना? Amplitude is energy is depending upon, है ना, that काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर. ठीक है. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट कैन बी डन बाय यू. तो दिस इज ऑल केस, ऑल पॉइंट्स वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग रेजोनेंस. ठीक है. तो रेजोनेंस में यू कैन इंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स, है ना. ओनली थिंग, अगर तुम्हें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो ये भी याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू नो दिस फार्मूला, है ना. या फिर यू कैन से ओके, अगर पूरा फार्मूला नहीं है, या तो एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर दिस टर्म्स. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन प्लस सम कांस्टेंट, है. तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. दिस टर्म विल बी जीरो इन रेजोनेंस. नाउ सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स वी विल डू. जैसे ये क्वेश्चन है पहला. These are also asked in competitive examination as well as अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं. देखो, cylindrical piece of cork or wood of density of base area. Density कुछ होगी, density इसकी रो वन दिए थे. बेस एरिया A, height H, floats in the liquid. ये लिक्विड की डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी रो है. ठीक है. ऑलराइट. द कॉर्क इज depressed or pressed slightly, depress or press slightly and then release. Show that the cork oscillate up and down with the simple harmonic with the period is given by this. Where अच्छा रो डेंसिटी नीचे लिखा है of cork. Ignore the damping due to the viscosity of liquid. Damping अभी free oscillation ले रहे हैं यहाँ पे. We are not taking the damping effects now. We are solving the free oscillations के numerical जो भी है इसमें. We will solve it. So let us see how to solve this question. ठीक है. तो ये एक कॉर्क है या वुडन ब्लॉक है जिसका एरिया जो है ए है. ठीक है. एरिया ए है और डेंसिटी इसकी कितनी हो गई? डेंसिटी लिक्विड की कितनी दी है? रो डैश. और इसकी डेंसिटी रो दी है. ठीक है. नाउ सपोज इफ यू प्रेस इट डाउन, इसको थोड़ा सा हमने प्रेस कर दिया डाउन नीचे,
Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Just wait, just let the things get settled. I will just. Okay, I think now it's okay. यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है शेयरिंग का. Okay, Chitrisha, please make me host. Are you there, Chitrisha? Yes, sir. Please make me host, then I can share the screen. Okay. All right. We were discussing this one, है ना? तो एक्स्ट्रा पॉइंट आई वाज टेलिंग दिस. देखो ये कॉर्क है, उसको हमने नीचे प्रेस कर दिया बाय एक्स. तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम से एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स बनेगा. Will provide the restoring force, will send the cork back to its initial position and will start oscillating. Because of inertia, it will overshoot. Extra buoyant force will provide the restoring force. तो buoyant force का formula do you remember? जब हम लोगों ने terminal velocity का derivation किया था वहां पर. Buoyant force is the volume immersed, volume inside, in extra volume inside. अभी यहाँ पे extra volume inside जो हमने प्रेस किया, into density of the liquid into density into G. ये फार्मूला होता है. तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना पुट किया हमने? ए द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्स नीचे पुश किया, एक्स इज द डिस्टेंस पुश्ड इनवर्ड, डेप्थ पुश इनवर्ड, है ना. एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? ρ1 दी हुई है. ρl दिया कि ρ1, एनीवे ρ1 जी. तो ये एक्स्ट्रा बॉयंट फोर्स है. ठीक है, बस यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा. एक्सेलरेशन मिलने के बाद ओमेगा मिल जाएगा. एक्सेलरेशन इज, यप देखो देयर आर बोथ वे, दोनों मैं बता देता हूँ. देखो इफ यू आर एबल टू गेट द रिलेशन एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस हमें अपनी तरफ लगाना पड़ेगा. देखो ये एक्स डाउनवर्ड है, रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड है, यहीं पे माइनस लगाना पड़ेगा. एक्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर अपोजिट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख दूं मैं, बिकॉज एवरी टाइम यू हैव टू take minus, otherwise it is not. So force, restoring force and x are in opposite direction, इसलिए माइनस लिया है ना. ठीक है, तो बस therefore it is equivalent to this also. k मिल जाएगा, this is equivalent to k पूरा टर्म. x अलग करना पड़ेगा, x इधर करना पड़ेगा, और फिर तुम ओमेगा इज इक्वल टू k by m. और टाइम पीरियड में मैंने क्या बताया, फिर उसको पलट के लिखना है ना. और यू कैन इंक्रीज वन मोर स्टेप, यहीं से करेंगे तो इजी रहेगा. बट एनीवे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स. ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, हमने ऊपर लिखा भी है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास. तो यहाँ से देखो माइनस ऑफ ए ρ1 g अपॉन मास ऑफ द होल बॉडी इनटू एक्स. दिस हैज टू बी ओमेगा स्क्वायर. मैंने क्या बताया, उसको सीधे पलट के लिख दो. अभी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में कर दो वो पूरा टर्म, और m ऊपर आ गया और बाकी टर्म नीचे हो गया, a इंटू ρ1 इंटू जी. ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड. ठीक है, और मास को भी अगर तुम्हें चेंज करना है, यहाँ पे देखो मास को भी चेंज करना है, उसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है. प्रूफ में क्या करना है, यहीं पे एंड करना है? नहीं, यहाँ पे एंड नहीं करना है. अभी हमें मास ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय volume into density. Volume is area of cross section into height into density of cylinder upon area of cross section into density of liquid into G. A goes to T is equal to 2 pi under root of H into rho upon ρ1 into G. ये प्रूव हो गया. देखो, this is frequently asked question in competitive examination also. It is slightly tough for you, but it is not that tough. So what we did, let me explain you again. जो extra push करते हैं ना, whatever we push it down, that extra buoyant force is there, that brings the
cork up, but due to inertia it will overshoot. Inertia से overshoot हो जाती है, it start oscillating. Suppose we are pushing it down by x distance, so extra buoyant force will be extra volume inside into density of liquid into g. तो volume को हम area of cross section into x extra जो हमने push किया वो buoyant force is opposite direction and displacement is in downward direction, buoyant force is upward direction. Both are opposite, therefore minus लिखा हमने. Now acceleration is equal to force upon mass and x is the displacement हो गया ना. तो जो coefficient होता है ये SHM की इक्वेशन हो गई. Acceleration is equal to minus omega constant into x. Constant is nothing but omega square. तो ये वाले फॉर्मूले से t is equal to 2 pi by omega. तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो उसका अंडर रूट लेके उसको पलट के लिख देंगे तो वो टाइम पीरियड बन जाता है. और इसमें भी व्हाट इज कॉल्ड मास जो है, मास ऑफ द सिलेंडर इज मास ऑफ द कॉर्क और सिलेंडर, यू कॉल इट एनीथिंग, नेम कैन बी चेंज. तो mass is volume into density. Volume is nothing but area of cross section into height of the cylinder or cork. A gets cancelled. So here, that is what was to be proved. All right. So this is one of the questions. 2-3 more questions are there. Then this chapter will be over. And tomorrow morning we can start the last chapter. All right. Any difficulty in this question? buoyant force का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो हमने स्टोक्स लॉ के बाद पढ़ा था, टर्मिनल वेलोसिटी में भी यूज किया था ये. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. भी ये क्वेश्चन और है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज. इसमें क्या बोला है कि सपोज हमने इस तरफ वैक्यूम पंप लगा दिया, प्रेशर थोड़ा कम कर दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल पुश इट डाउन, है ना. बाद में वैक्यूम पंप निकाल लेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, जो एक्स्ट्रा मास ऊपर आया था दैट विल पुश इट डाउन एंड ड्यू टू इट विल कम टू द सेम लेवल, बट ड्यू टू इनर्शिया इट विल ओवरशूट. फिर नीचे अगर विस्कोसिटी नहीं है तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ऐसा ऐसा. तो ये प्रूव करना था कि प्रूव दैट इट इज एसएचएम एंड व्हाट विल बी टाइम पीरियड नहीं पूछा है, तो वी कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड. मोमेंट वी प्रूव इट एसएचएम, नेक्स्ट स्टेप में टाइम पीरियड लिख सकते हैं बिकॉज रिलेशन ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो उसका कोएफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है और उससे टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं. लेट अस सी हाउ मच इज द टाइम पीरियड कमिंग. तो देखो जो एक्स्ट्रा वेट इधर हो गया ऊपर, तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑफ हाइट x, सपोज x ऊपर है, लेवल डिफरेंस इज x, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेट लेवल डिफरेंस इज x. तो एक्सीलरेशन जो है, अभी ये फोर्स लगाएगा पूरे होल सिस्टम के ऊपर, पुश करेगा उसको. तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूसेस द एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा लिक्विड का जो फोर्स है, एक्स्ट्रा हाइट की जो बनी है अपॉन टोटल मास ऑफ द लिक्विड. तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑफ हाइट x, ये कितना बनेगा ये हमें लिखना पड़ेगा. देखो अभी माइनस साइन भी आएगा, माइनस इज द, माइनस क्या है, फोर्स नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ हुआ, तो माइनस भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमें. माइनस फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑफ हाइट h कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, m डैश इंटू जी, इतना वेट बना उसका अपॉन टोटल मास m. ठीक है, तो m डैश इज द, m डैश क्या है, मास ऑफ हाइट x, मास ऑफ हाइट x ऑफ द लिक्विड. ठीक है, उसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं उसको. देखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए देखिए एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, वो कैंसिल हो जाएगी बाद में, ए इंटू एक्स, ये वॉल्यूम हो गया. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो इंटू जी, मास भी, मास एम लिक्विड का है ना. ठीक है, होल मास ऑफ द लिक्विड, एम इज द मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ होल लिक्विड, मास ऑफ होल लिक्विड. होल लिक्विड क्यों, होल लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है ना, उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना, मास ऑफ होल लिक्विड इन द ट्यूब. ठीक है, बस यहां से देखो आ गया अपना नेक्स्ट, ए रो जी अपॉन एम इंटू एक्स, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया. और मैंने बताया डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते, टी इज इक्वल टू 2 पाई, इसको इन्वर्ट करके लिख दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो और बाकी एज इट इज लिख दो. तो ये एसएचएम भी प्रूव हो गया, टाइम पीरियड इसका आ गया. देयरफॉर एसएचएम एंड टाइम पीरियड इतना. तो लेट्स सी टाइम पीरियड उसमें कितना आया था, ऊपर कॉर्क का कितना आया था. यहाँ पे देखो वो ऑलमोस्ट सेम था रिजल्ट है ना, मास अपॉन ए इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी.
यहाँ पे एक ही लिक्विड है, जो लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है उसी की डेंसिटी है। रो इज द डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिक्विड है और मीडियम भी उस वो खुद ही ऑसिलेट कर रहा है ना। इट इज नॉट ऑसिलेटिंग इन द एनी अदर मीडियम। वो ट्यूब में ऑसिलेट कर रहा है, ट्यूब का कोई रोल नहीं है, ट्यूब इज जस्ट सोर्स, दैट उसको कन्फाइन करने का सोर्स है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो समटाइम्स आस्क्ड, particularly mostly competitive examination में। ठीक है, clear? So you can just see it is SHM also, and also your time period भी हमने उसका लिख दिया ना। All right, not two, I think two more questions are remaining, then this chapter is over. Okay, ये भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें तुम्हारे प्रीवियस चैप्टर की नॉलेज चाहिए। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था हम लोगों ने, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का और बल्क मॉडुलस भी पढ़ा हमने। यू रिमेम्बर बल्क मॉडुलस इज हाउ मच? बल्क मॉडुलस में डेल्टा वी। ओके, जस्ट लेट अस रिकैप द थिंग्स जो हमें इसमें लगेंगे। एक तो आंसर देखते हैं बल्क वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस के टर्म में दिया हुआ है ना। तो यहाँ भी हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जस्ट लेट मी टेल यू क्विकली। वही एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर जो है, जो हम प्रेस करेंगे इसको, इसमें क्या बोला है कि इसको प्रेस कर दिया नीचे, अंदर गैस है, एयर है, और वो ये जो बॉल है इट इज ऑसिलेटिंग हियर इन द नेक ऑफ द कंटेनर। तो एक्स्ट्रा फोर्स जो बनेगा, एक्सचेंज ऑफ प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब अपॉन मास। और ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में, इफ यू रिमेम्बर, इसको डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन को डेल्टा पी बाई डेल्टा वी निकाला था, दैट इज माइनस पी वी, माइनस पी बाई वी। जो इधर ऊपर सिंबल है वो यहाँ पर है, जो इधर है। ठीक है, यहाँ से डेल्टा पी मिल जाएगा हमें, इसको डीवी को इधर भेज देंगे, डेल्टा पी, है ना। और बल्क मॉडुलस का फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। बल्क मॉडुलस का यहाँ पे लिखूं मैं, इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेस, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी। ये जो टर्म आएंगे उसको हम बल्क मॉडुलस लिख देंगे। माइनस भी आएगा तो माइनस भी होता ही है इसमें, अगर हम पूरा अगर देखें तो these are the, अच्छा इसमें होल्ड ऑन, हाँ तो ठीक है, वो जो डेल्टा पी वाला टर्म है वो पूरा डेल्टा पी वाला टर्म, चलो विल सी। लेट अस सी नाउ, विल डू वन बाय वन, अब सभी स्टेप लिखते देखते पढ़ते। क्वेश्चन पहले, एयर चैम्बर ऑफ वॉल्यूम वी, टोटल वॉल्यूम वी है, एंड नेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है, नेक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, into which a ball of mass m is just fits and can move up and down without any friction, free oscillation. Show that when the ball is placed down little and released, it executes simple harmonic motion. Obtain the expression for the time period of oscillations, assuming that pressure volume variations of air to be isothermal. Isothermal में PV is equal to nRT, PV is equal to constant. इसको डिफरेंशिएट करके हमने डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। शैल आई टेल यू डिफरेंशिएशन वंस मोर? फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ओके, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, डेल्टा लिख रहे हैं या डीवी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। सेकंड टर्म का हो गया फर्स्ट, सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें इनफैक्ट बल्क मॉडुलस में कन्वर्ट करना था, डीपी भी चाहिए ऑफ कोर्स, चेंज ऑफ प्रेशर भी चाहिए, दैट विल बी माइनस ऑफ पी
अपॉन PdV अपॉन Vm, ये ठीक है। तो ये हमें चाहिए होगा। तो क्या लिखते हैं अभी हम, बेसिक वो ही जाते हैं। A इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, जो प्रेस करेंगे एक्स्ट्रा फोर्स उसको नीचे, अभी इक्विलिब्रियम में सेट है सपोज है ना, ऊपर का फोर्स नीचे, अब जब इधर फोर्स कर दिया तो ये रिस्टोरिंग चेंज ऑफ प्रेशर वो उसको ऊपर लाएगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन मास, चेंज ऑफ प्रेशर हम यहाँ से पुट कर सकते हैं वैल्यू माइनस PdV अपॉन होल वॉल्यूम इनटू मास। और चेंज ऑफ ये कितना यहाँ पर लेके आए सपोज, तो एक्स नीचे प्रेस किया हमने, सपोज इट हैज कम हियर, इसको हटा देते हैं एरिया, इट हैज कम हियर, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू। इसको यहाँ तक नीचे पुश करके लेके आए, ठीक है, इसको डाउन पुश किया एंड दिस एक्स डिस्टेंस पुश किया, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हुआ, PV मास, चेंज ऑफ वॉल्यूम है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, डिस्टेंस एक्स से डाउनवर्ड, और रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर होगा, तो इसलिए माइनस यहाँ पे आ गया अपने आप ही। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इज एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू एक्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें सिंबल चेंज करना पड़ेगा, अपने एक्सेलरेशन का सिंबल चेंज करना पड़ेगा, A+C कर दिया हमने, A+C इज इक्वल टू माइनस PA अपॉन VM इंटू एक्स। बस हो गया, डेरिवेशन यहीं पे फिनिश। कैसे, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो T इज इक्वल टू 2 पाई, इसको पलट के लिखना है VM, कुछ एनीथिंग इज मिसिंग और व्हाट, प्रेशर में एरिया छूट गया था, देखो फोर्स में प्रेशर इनटू एरिया होता है, अभी जस्ट नाउ मैंने बताया था प्रेशर इज रिस्टोरिंग फोर्स से चेंज ऑफ प्रेशर से इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है ना। तो यहाँ पर एरिया रहेगा और ये A स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एक मिनट, इसको जस्ट लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली। डेल्टा P की वैल्यू पुट कर दी, हाँ DV भी है यहाँ पर इनटू A, तो यहाँ पर माइनस P, DV की वैल्यू कितनी पुट की हमने, चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना हो रहा है, एक्स नीचे प्रेस कर रहे हैं, और एरिया क्रॉस सेक्शन, एक एरिया बाहर भी है VM, तो ये A स्क्वायर हो चुका है, तो नीचे PA स्क्वायर, ठीक है। तो डू वी हैव टू प्रूव दिस ओनली और समथिंग एल्स? यहाँ पे वन, यू कैन नोटिस वन पॉइंट P, यहाँ पे P नहीं है, B है। तो बल्क मॉडुलस में इफ यू रिमेम्बर केयरफुली, आइसोथर्मल में, अच्छा बल्क मॉडुलस यहाँ से निकाल भी सकते हैं, देखो कहाँ गया फार्मूला। ओके चलो, वील फाइंड आउट बल्क मॉडुलस, वील प्रूव दैट बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन आइसोथर्मल already we have done it, या फिर you can just, you can see your notes, bulk modulus is equal to P, therefore T is equal to 2 pi V by VM upon BA square, ठीक है। और एडियाबेटिक में डू यू रिमेम्बर, आप मैंने बल्क मॉडुलस कैलकुलेट कराया था, B P is B is equal to गामा इंटू P आया था, गामा इंटू P। तो इसमें गामा P की वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिया होगा तो यू हैव टू डील इट सेपरेटली, उसकी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, बल्क मॉडुलस भी डिफरेंट होता है। तो दिस इज डन, दिस इज डन, रूट V, लेट अस सी द आंसर, रूट के अंदर VM है और BA स्क्वायर है, ओनली थिंग यू हैव टू सी बल्क मॉडुलस का, यहाँ से बल्क मॉडुलस, इफ यू वांट आई कैन शो यू, ये सब हटा दो। ओके, नाउ आई एम नॉट शोइंग यू, टाइम इज जस्ट लिमिटेड, उसको तुम रेफर द थर्मोडायनामिक्स नोट्स, ठीक है, ये हमने प्रूव किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन जस्ट गो थ्रू, ये कौन कौन से पीरियोडिक मोशन है SHM है, यू कैन डू इट।
ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। ऑटोमोबाइल का मास दिया हुआ 3000 kg, assuming that you are examining the oscillation characteristics of the suspension system. The suspension sags by 15 centimeter when the entire automobile is placed on it, है ना? सस्पेंशन जो सपोर्ट करता है, स्प्रिंग लोडेड रहता है, स्प्रिंग वगैरह रहता है उसमें। आल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस। ओके, पहले ये पार्ट देख लेते हैं, ये सेकंड पार्ट बाद में। तो पहले क्या निकलना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जो देयर विल बी 4 व्हील्स, 4 स्प्रिंग्स एंड 4 mass will be divided into 4 parts. Total mass कितना है? Automobile, in fact, they should write the car and all. ठीक है, you assume that car is there. 3000 है, 4 wheels लिखे होंगे नहीं तो नीचे कहीं पर। ओके, दिया ना? हाँ, यहाँ पे दिया, assuming that each wheel supports 750, इसका 1/4 हो गया ना। तो every wheel is supported by the suspension system spring रहते हैं उसमें। तो mg is equal to kx, mg यहाँ पे पुट कर दिया ये वाला, और x दिया है कितना बेंड, कितना वो सैग हो जाता है, कितना प्रेस हो जाता है, 15 सेंटीमीटर। पुट इट हियर, you will get your what is called k मिलने के बाद सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, एस्टिमेट। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोला, आल्सो you मतलब also the amplitude of oscillation decreases by 50% during one complete oscillation। एक ऑसिलेशन में 50% डाउन हो जाता है एम्पलीट्यूड। तो एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल लो, देखो t = 2 pi under root of m/4k। नाउ होल बॉडी ले रहे हैं, होल मास ले रहे हैं गाड़ी का, तो ऑल द 4 स्प्रिंग्स आर व्हाट इज कॉल्ड 4k हो जाएगा उनका, है ना। ऑल आर सपोर्टिंग द मास, ईच इज सपोर्टिंग 750। तो होल मास लेंगे तो सभी का स्प्रिंग कांस्टेंट लिया जाएगा, ऑल विल बी इनटू एक्शन। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया तुम्हारा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। नाउ व्हाट टू डू, नेक्स्ट पार्ट ये कैसे करेंगे, एस्टिमेट द, क्या निकलना है तुम्हें, बी, डैम्पिंग कांस्टेंट निकलना है। तो इसके लिए हमें उसमें जाना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, a e⁻ bt/2m। देखते चेक करते हैं इसको। Here it is, ये होल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये पुट कर दिया, 50% हो गया वो, हाफ इनिशियल का 50% हो गया ना। तो इट इज, दिस इज a/2, a/2 इज इक्वल टू a - bt/2m। इनिशियल होगा ना, t0 पुट कर दो, ये तो 1 हो जाएगा, तो यही बचा आपको, है ना। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसकी सॉल्विंग टेक्निक देखो, यहाँ पर क्या आ गया, 1/2, 2 को ऊपर भेज दो, 2⁻⁻1 हो जाएगा, 2⁻⁻1, और इधर -bt/2m। इसके बाद क्या करें, लॉग ले लो दोनों तरफ, -1 आगे आ जाएगा ln2, और ये bt/2m। ये रेडियो एक्टिविटी में भी हम हाफ लाइफ ऐसे ही निकालते हैं, दोनों तरफ लॉग लेके, है ना, 12th में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, log e1 हो जाएगा, ln e is 1, तो माइनस माइनस चला गया। और ये देखो, यहाँ से मैं डैम्पिंग फैक्टर b निकालना है, तो 2m इंटू ln2 अपॉन ओके, एक मिनट, 2m आ गया, नीचे क्या आएगा, t। दिस t हैज टू बी टाइम पीरियड। ये जो t है, हाफ किस में हो रहा है, 1 टाइम पीरियड में, ये कैपिटल T हो जाएगा टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे t आ गया, पुट द वैल्यू हियर। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ किसी एक का ले लो, सभी ऑसिलेट करने हैं, वन व्हील पे फोकस करते हैं। टाइम पीरियड तो होल बॉडी का हमने निकाला, तो 1 व्हील पर
वन व्हील पे फोकस करो, 2 into मास, ईच व्हील का पूछा हुआ। शॉक ऑब्जर्वर सभी व्हील में लगे रहते हैं, उसका डालना है ना, सभी व्हील में एक एक लगा रहेगा। तो देखो 2 into m पुट कर दिया, अभी सॉल्विंग है। ln2 की वैल्यू तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी 0.693, है ना। ये रेडियो एक्टिविटी में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइम पीरियड हमने ये निकाला, ऊपर से ये पुट कर दिया, इट कम्स टू बी 1344.6 ग्राम kg पर सेकेंड। अभी हमने यूनिट का थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। ln2 देखो कैसे आता है, ln2 इज 2.3 into log 2 base 10, 2.303 है एक्चुअली, ठीक है, इंटू ये ln2 कितना होता है 0.303। तो मैं बाकी टर्म छोड़ रहा हूँ उसको, तो ये 6.9, ये तुम्हारा 6.9, ओके, यहाँ पे 0.3 कर दो, 103 और इंटू 0.ln2 इज 0.3010 होता है। इफ यू मल्टीप्लाई 0.693 आ जाता है बेस 10। log 2 की वैल्यू लर्न करके रखनी पड़ेगी, समटाइम मे नॉट बी। तो ये 0.693, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इट इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, समटाइम दे आस्क यू दिस क्वेश्चन जेईई एंड नीट। फाइनली ये क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन यू कैन ट्राई, अगर टाइम नहीं है ये और ये, या फिर मैं तुम्हें क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अगर हम बॉब को वाटर में ऑसिलेट करें तो बॉयंट फोर्स विल डिक्रीज द एक्सीलरेशन, जी नेट कितना आएगा उसका, जी नेट हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस बॉयंट फोर्स fb डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई m। तो जी नेट उसका कम हो जाता है। देखो अभी बाइंड फोर्स का डिस्कस कर रहे थे हम लोग, वाटर में ऑसिलेट कर रहे हैं तो टाइम पीरियड निकालना है उसका, है ना, ये क्वेश्चन है। एयर में टी है, एयर में टी नॉट दिया हुआ है, एयर में टी नॉट है, तो वाटर में निकालना है टाइम पीरियड, उनका रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो mg बाइंड फोर्स कितना आएगा इसमें, वॉल्यूम पूरा इमर्स्ड है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, रो है, सिग्मा है सॉरी, और ये क्या है जी इधर आएगा, ठीक है, अपॉन एम, ठीक है। तो मास mg, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है, रो है, इसके यहाँ पे हमने अंदर लिखा हुआ देखो डेंसिटी। तो ये फार्मूला ही बना लेते हैं पहले, सिग्मा इंटू जी अपॉन एम। एम एम कैंसिल हो गया कॉमन, लेके जी भी कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ठीक है, जी नेट आ गया। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी नेट, ठीक है, जी नेट। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन, तो लिक्विड में ऑसिलेशन ये होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉब, ये नया फार्मूला बन गया, इससे सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन नाउ। अगेन यू कैन सी दिस क्वेश्चन, तो उन्होंने डेंसिटी एयर में टी नॉट दिया था और लिक्विड में टी है, दोनों का रेशियो निकालना था। नाउ यू कैन डू इट, ए आंसर आएगा, यू कैन टेक द स्नैपशॉट, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा, नहीं 3/4 आ जाएगा, 4 इधर जाएगा तो 4 माइनस 3, और ये नीचे वाला 4 ऊपर जाके रूट से बाहर आएगा, तो ट्वाइस आ जाता है। लिक्विड में स्लो डाउन हो जाता है बिकॉज इट इज अपवर्ड फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स कम हो जाता है, धीरे धीरे ऑसिलेट करता है। टेक दिस स्नैपशॉट एंड यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, ये फार्मूला लर्न कर लो। जस्ट 2 more minutes, then this chapter is going to be over. Tomorrow we'll start the last chapter. Tomorrow morning and afternoon same schedule is there, ठीक है। और तुम्हें फाइनली ये प्रूव करना है, देखो ये क्वेश्चन, अगर ये अर्थ की हमने एक टनल डिग की थ्रू डायमीटर, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया,
तो इट गोज लाइक दिस एंड वापस रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा तो वापस ऑसिलेट करता है. तो ऑब्जेक्ट ड्रॉप विल prove that object drop will oscillate with the time period t is equal to 2 pi under root of r by g, time of oscillation in tunnel in the earth. ठीक है, कैसे करेंगे ये देखो, वही रिस्टोरिंग फोर्स वाला जी डेप्थ पे कितना होता है, यहाँ पे जी नेट लेना पड़ेगा. ओके, आर बाई जी, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रेडियस है. तो जी डेप्थ कितना होता है, वही नेट एक्सीलरेशन होगा. डू यू रिमेम्बर जी डेप्थ? जी 1 माइनस डी बाई आर, जी आर माइनस डी बाई आर. ये आर माइनस डी एक्स हो जाएगा. देखो यहाँ पर जस्ट अंडरस्टैंड, सपोज यहाँ पर है कहीं पर, वो समवेयर हियर डेप्थ डी पर, तो डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी एक्स, दैट विल बी टोटल आर माइनस डी हो जाएगी. टोटल इज आर, दिस विल बी एक्स बाई आर, जी डेप्थ है ना. तो माइनस, अभी जी नीचे की तरफ है, जी डाउनवर्ड है जी डेप्थ, और ये ऊपर की तरफ है डिस्प्लेसमेंट. बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जी एंड एक्स आर इन अपोजिट. मीन पोजिशन सेंटर में अर्थ की ली जाएगी. तो ओमेगा क्या आएगा, टी क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये आर एंड जी को रिवर्स करके लिखो, आर बाई जी. तो ये टाइम पीरियड है. तो इफ यू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट इन द टनल डक थ्रू द अर्थ डायमीटर, इट विल ऑसिलेट इन विद दिस टाइम पीरियड. डू यू रिमेम्बर इसकी वैल्यू कितनी थी, क्लोज टू 85 मिनट्स. इफ यू ड्रॉप इट हियर, अगर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब डिसिपेटिंग फोर्सेस नहीं है, it will go to the other side of the earth and come back within 85 minutes to you. You can catch it after 85 minutes if it is the ideal situations. Clear? तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था ये, that how fast earth rotates की weightlessness at equator, या फिर सैटेलाइट close to the earth surface, वो भी ये फार्मूला आता है इन ग्रेविटेशन. ठीक है, तो ये ओवर हो गया है. And waves will start tomorrow. That is big chapter. Tomorrow morning, afternoon, same time. Okay, thank you. Anything you want to ask? No, sir. ठीक है. Okay then. Ma'am, are you there? इस क्लास है ना अभी इसके बाद. Okay, I'm quitting now. Thank you. Okay, welcome. Okay, thank you, sir.